Unacademy लाया है special price week. Get your CSIR UCNet subscription at a 15% plus 10% discount. You are going to save 15% plus 10%, total 25% discount. This offer is valid for a week. Remember the date 13 to 17 September. Discount is only applicable on 6 months, 12 months and 24 months subscription only. Enroll now. The link is in the description. Don't forget to use my referral code BOTANY10. Let's come to this subscription of Plus and Iconic. You get in Plus subscription India's best educator, interactive live classes, structured courses and PDF live tests and quizzes, which is a basic plan to get you started. In Iconic you get India's best educator, interactive live classes, structured courses and PDF live tests and quizzes like Plus subscription. But here you get personal coach, personalized doubt solving, preparatory study material and SOP and interview preparation. Also you can also here get 10% discount after applying my referral code, which is BOTANY10. Get Unacademy CSIR UCNet subscription. CSIR Plus pricing are for 3 months 6,250, for 3 months 6,250, for 6 months 11,600, for 12 months 14,500, for 24 months it is only 20,000. You can also get 10% discount after applying our channel referral code, which is BOTANY10. The links are given in the description. CSIR UCNet. What do we offer on Unacademy subscription? Full length courses, MCQs, previous year questions, new batch courses every week, dedicated doubt clearing sessions, weekly quizzes in every courses, full mock test on all Sundays, which is in bilingual. Okay, and Unacademy also comes with for their Iconic learners now get access to research and interview guidance also. What will the program offer? Communication skill, presentation skill, language, research methodology, synopsis writing, project proposal writing, applications of statistical tool like SPSS and Origin, etc., review of research work, instrumentation, paper writing, journal and types, mock interview subject to demand. This program will be running in September. Okay, on Unacademy free platform, get full length mock test for CSIR UCNet starting 4 September 2021 for life sciences, physical sciences, mathematical sciences and chemical sciences. Use my referral code BOTANY10 to unlock the test and enroll now. The link is given in the description of this video. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में हम बात करेंगे उड़ीसा कॉमन पीजी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था अभी 2021 का, उसका सेकंड पार्ट में हम बाकी के बच्चे जो हैं हमने पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व कराया था। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ आइसोगैमस टाइप इन सम स्पीसीज ऑफ द जीनस। कह रहा है किसके स्पीसीज में, जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। तो अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे तो वोकेरिया, उडेगोनियम और कारा में तीनों में ऊगैमी ही केवल एक सेक्सुअल टाइप जो मोड है वो पाया जाता है। और वहीं अगर आप क्लेमाइडोमोनास देंगे तो ये यहाँ पे आपको होलोगैमी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी चारों चीज़ें मिलती है। तो आइसोगैमस भी इसमें आता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए, क्लेमाइडोमोनास। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। एपिथेशियल ओरिजिन ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू इज सीन इन द स्पोरोफाइट्स ऑफ। कह रहा है कि स्पोरोजीनस सेल जैसे आप देखेंगे जब टिश्यू डिफ्रेंशिएशन होता है तो दो चीज़ बनता है, एम्फीथीशियम और एंडोथीशियम स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट में, और वहाँ पे ये दोनों अलग अलग चीज़ें बनाती है। ये इंपॉर्टेंट है जब आप ब्रायोफाइटा पढ़ते हैं तो कि कौन सा पार्ट क्या बनाता है। तो वैसे ही यहाँ पे पूछा है कि जो स्पोरोजीनस टिश्यूज़ होते हैं वो एम्फीथीशियल ओरिजिन का होता है, किसके स्पोरोफाइट में मिलता है, रिक्सिया, मार्गेंसिया, पेलिया या फ्यूनारिया। तब मैं आपको बता दूँ, ये मैंने आपको बताया था पिछले भी डिस्क्रिप्शन में जब मैं आपको BHU के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था, तो कि एम्फीथीशियल जो ओरिजिन होता है स्पोरोजीनस टिश्यू का, ये केवल और केवल आपको किस में देखने को मिलेगा, एंथोसीरोटॉप्सिडा में देखने को मिलता है। देखिए एम्फीथीशियम जो होता है एंथोसीरोटॉप्सिडा में, डिस्क्रिप्शन आप ये एक्सप्लेनेशन आप पूरा पढ़ लीजिएगा। एंथोसीरोटॉप्सिडा में जो एम्फीथीशियम होता है ये वॉल का कैप्सूल बनाता है आउटर एम्फीथीशियम के पार्ट से, और स्पोरोजीनस सेल्स और स्यूडोलेटर्स बनता है इनर एम्फीथीशियम, ठीक। और केवल इसी में एम्फीथीशियल ओरिजिन होता है स्पोरोजीनस टिश्यूज़ का। अगर आप देखेंगे हिपैटोकॉप्सिडा में तो एंडोथीशियम बनाता है स्पोरोजीनस सेल्स,
और अगर आप देखेंगे ब्रायोप्सिडा में तो एंडोथेसियम क्या बनाता है, स्पोरोजिनस सेल्स और कोलोमेला बनाता है। तो स्पोरोजिनस सेल्स की अगर बात हो तो इंथोसीरोटॉप्सिडा में ही एपिथेलियल ओरिजिन होता है, जो कि इससे कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए कोई भी ऑप्शन नहीं करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आते हैं। द कॉर्टेक्स ऑफ डायकॉट स्टेम इज डिराइव्ड फ्रॉम। कह रहा है कि जो डायकॉट का स्टेम का कॉर्टेक्स होता है किससे डिराइव्ड होता है। इसके लिए आपको एनाटॉमी में जो भी थ्योरीज दी गई हैं, एपिकल जो होता है सेल थ्योरी, ये सब सारी थ्योरी, ठीक है, स्मिथ का और हिस्टोजन थ्योरी जो दिया हुआ, ये सब आपको पढ़ना है कौन सा पार्ट क्या बनाता है। तो यहाँ पे आपको बोला गया था डर्मेटोजन, पेरिब्लम, प्लूरोन या कैलिप्टोजन। तो अब डर्मेटोजन, डर्मेटोडर्मिस और कैलिप्टोजन ये क्या होता है, ये प्लांट के रूट में पाया जाता है। तो दोनों को स्किप कर सकते थे। यहाँ पे ऑप्शन हमारा बचता है पेरिब्लम है कि प्लूरोम है। ठीक, पेरिब्लम की अगर हम बात कर लें तो ये एपिकल मेरिस्टम का पार्ट है जो कि प्लूरोम और डर्मेटोजन के बीच में होता है, मतलब सेंटर एकदम अंदर वाला लेयर प्लूरोम, फिर क्या होता है पेरिब्लम और फिर आपका डर्मेटोजन आता है। तो आप इसे समझ सकते हैं डर्मेटोजन क्या करता है, ये आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म करता है, एपिडर्मिस फॉर्म करता है। फिर आपका क्या आता है, आपका कॉर्टेक्स आता है। कॉर्टेक्स आपका किससे बनता है, पेरिबेलम से बनता है। ठीक, क्योंकि ये प्लूरोम और डर्मेटोजन के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या बना देगा, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस। वही जो प्लूरोम है ये सेंटर स्टील फॉर्म करता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज पेरिब्लम। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अ टैक्सोनॉमिक की दैट इज प्रिपेयर्ड डाइकोटोम्यूजली टेकिंग वन और मोर कैरेक्टर्स, डाइकोटोमी इज कॉल्ड। अगर आपने कोई भी फ्लोरा का बुक देखा होगा तो जो हम स्पीशीज पहचानते हैं उस स्पीसीज तक पहुंचने के लिए कैरेक्टर मैच करा करा के हम पहुंचते हैं, तो दो टाइप से कर सकते हैं, एक तो सिंगल एक्सेस या तो मल्टीपल एक्सेस। तो जो डाइकोटोमस की होता है वो क्या होता है, सिंगल एक्सेस की भी उसे बोलते हैं। और वहीं देखो डाइकोटोमस क्या होता है, सिंगल एक्सेस की। पॉलीक्लेव होता है उसको मल्टीपल एक्सेस या सिनॉप्टिक की भी बोलते हैं। तो ऐसा क्या होगा, जैसे अगर आप इसमें पहचानते हैं फ्लावर कलर येलो, फिर दूसरा सेंटेंस क्या होगा, फ्लावर कलर ब्लू, तो दो ही कैरेक्टर होंगे। ये डाइकोटोमस कीज होते हैं। ऐसे मल्टीपल एक्सेस की में आप मल्टीपल चीज़ें जो है एक साथ, जैसे फ्लावर कलर येलो, फ्रूट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, ऐसे मल्टीपल कैरेक्टर को लेते हैं, तो वो मल्टी एक्सेस की होता है। ये सिंगल एक्सेस की होता है जहाँ पे एक समय में दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आप लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम आते हैं। In a distribution with a mean and a standard deviation of 40 and 2 respectively, the coefficient of variation will be। यहाँ पे आपको मीन दिया गया है क्या 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया गया है 2। कह रहा है आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, एक मेजर है, रिलेटिव वेरिएबिलिटी का मेजर है। एक वेरिएबिलिटी होती है, एक रिलेटिव वेरिएबिलिटी होती है। और ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का ये क्या होता है, रेशियो होता है। फॉर्मूला क्या है इसका, CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100% और 40 डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे शायद मैंने गलत लिख दिया है, 40 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे 20, तो इससे तो ज़्यादा हो जाएगा। एक्चुअली फार्मूले में स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ऊपर रखना है, तो 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, 2 ऊपर जाएगा, 2 आप डिवाइड करेंगे 40 से तो आएगा आपका 0.5, और ये जो आया रिजल्ट इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। तो ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, 40 नीचे रहेगा, 2 ऊपर रहेगा। ठीक, क्योंकि ये क्या है, रेशियो है स्टैंडर्ड डेविएशन टू मीन, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर रहेगा, मीन नीचे रहेगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 100% विच विल बी 5%। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इन ग्राउंड नट सीड, ग्राउंड नट क्या है, अराइकिस हाइपोगिया। ठीक, फेबेसी फैमिली के मेंबर है। फेबेसी फैमिली के मेंबर में फूड मेनली कहाँ पे रिजर्व होते हैं, कॉटिलिडन में। तो यहाँ से आप गेस कर सकते हैं। ग्राउंड नट सीड जो होता है, कह रहा है फूड इज रिजर्व एज अ प्रोटीन एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स इन द एंडोस्पर्म, सीड कोट, कॉटिलिडन्स और एम्ब्रियोनल एक्सेस। तो आपको 2 चीज़ याद रखना है, फूड स्टोर कॉटिलिडन्स में भी हो सकता है या तो एंडोस्पर्म में रहता है।
कुछ प्लांट्स रहते हैं जो एंडोस्पर्म का सारा फूड यूज़ करके कोटिलिडन में स्टोर कर लेते हैं, तो फेबेसी फैमिली उनमें से एक है जो कि अपना जहाँ पे सारा फूड वो अपने कोटिलिडन में स्टोर करता है। और ग्राउंड नट जो है फेबेसी फैमिली का मेंबर है जहाँ पे कोटिलिडन पाया जाता है, स्टोर्ड फूड वहीं पे रहते हैं, तो जो इसका प्रोटीन और ऑयल ड्रॉपलेट्स होंगे ये कोटिलिडन में ही होते हैं। एग्जाम्पल्स आर पी, बीन एंड ग्राम, ये भी एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। द एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड थ्रू ATP डिपेंडेंट कन्वर्जन टू फैटी एसिड कोएंजाइम A इज कैटलाइज्ड बाय। कह रहा जो एक्टिवेशन होता है फैटी एसिड्स का थ्रू ATP डिपेंडेंट कन्वर्जन, जहाँ पे कन्वर्जन क्या होता है फैटी एसिड्स का फैटी एसिड कोएंजाइम A में, कह रहा ये जो रिएक्शन है किसके द्वारा कैटलाइज होता है। यहाँ पे ऑप्शन है लाइपोकाइनेज, फैटी एसिड एटीपीएस, थायोकाइनेज, एसिड कोएंजाइम। एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स रिक्वायर्स द फॉर्मेशन ऑफ अ थायोस्टर बॉन्ड। तो ये जो एक्टिवेशन होता है फैटी एसिड से फैटी एसिड कोएंजाइम बनने का, यहाँ पे क्या रिक्वायर होती है कि थायोएस्टर बॉन्ड बने कोएंजाइम ए के साथ। ये एक एडी डिपेंडेंट प्रोसेस है, एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है, ठीक। और ये कैरीड आउट किससे होता है, एसिल कोएंजाइम सिंथेटेज से। तो यहाँ पे तो कोई नाम ऐसा दिया नहीं गया है एसिल कोएंजाइम सिंथेटेज, काइनेज है, थायोकाइनेज है, तो काइनेज तो नहीं है एसिल कोएंजाइम में काइनेज। अगर हम एसिल कोएंजाइम में सिंथेटेजेस के अल्टरनेटिव नेम्स पे जाएंगे तो इसका और क्या क्या नाम है, स्टेट थायोकाइनेज, एसिटिल एक्टिवेटिंग एंजाइम, एसिटिल कोएंजाइम में सिंथेज, एसिटिल कोएंजाइम में सिंथेटेज, एसिल एक्टिवेटिंग एंजाइम, ये सब सारे ऑप्शन है। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है कि एसिल कोएंजाइम में काइनेज क्या इसका ऑप्शन हो सकता है कि नहीं, पर थायोकाइनेज क्योंकि इसके अल्टरनेटिव नाम में है तो हम थायोकाइनेज के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास ऑफ सिंपल प्रोटीन। कह रहा है इनमें से कौन सा चारों में से फास्फोप्रोटीन्स, स्क्लेरोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और फ्लेवोप्रोटीन कौन सा सिंपल प्रोटीन्स में आता है। देखिए सिंपल प्रोटीन्स और कंजुगेटेड प्रोटीन्स, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ प्रोटीन्स। सिंपल मीन्स जो सिंपली प्रोटीन्स का बना हो, और कंजुगेटेड मीन्स प्रोटीन पार्ट के साथ कोई और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उसमें जुड़ा हुआ होता है। फॉस्फोप्रोटीन्स में क्या होता है, फॉस्फेट जुड़ा होता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स में कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होता है। फ्लेवोप्रोटीन्स में क्या होता है, फ्लेविन होता है, वो जुड़ा हुआ होता है। वहीं जो स्क्लेरोप्रोटीन्स हैं ये सिंपल प्रोटीन्स में आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग म्यूटेजन। स्ट्रॉन्ग म्यूटेजन की बात कर लें तो मीथेन, कैफीन और ऑपियम स्ट्रॉन्ग म्यूटेजन में नहीं आते हैं। अगर आप सोर्सेज देखेंगे तो कार्बन टेट्रासल्फाइड कहीं में दिया हुआ है कि ये बैक्टीरिया के लिए क्या होता है, म्यूटेजन होता है। कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि ये म्यूटेजन नहीं भी है, तो कुछ सोर्सेज के साथ हम जाते हैं जो कहते हैं ये म्यूटेजन है, क्योंकि और तीनों ऑप्शन हमें म्यूटेजन नहीं, इनकी म्यूटेजेनिसिटी नहीं नोन है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेसेस। कह रहा है इसमें से कौन सा चारों में से स्टेटमेंट डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए करेक्ट नहीं है। फर्स्ट पे आते हैं। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा सिंथेसाइजेस प्राइमरी इन यूकैरियोट्स, यस इट इज करेक्ट ऑप्शन। पॉलीमरेज जो अल्फा है आपका ये डीएनए प्राइमेज ही है, ठीक। क्या है ये आपका डीएनए सिंथेसिस में जो प्राइमर बनता है वो बनाता है यूकैरियोट्स में। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। डीएनए जी, तो डीएनए जी जो होता है ये प्राइमर सिंथेसाइज करता है प्रोकैरियोट्स में। तो जैसे कि यूकैरियोट्स के लिए डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, वैसे प्रोकैरियोट्स के लिए डीएनए जी। ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। लोडिंग एंड एक्टिवेशन ऑफ हेलिकेज इन G1 फेज। तो ये तो करेक्ट है कि जो लोडिंग होता है सारे ओरिजिन्स पे हेलिकेजेस का लोडिंग G1 फेज में हो जाता है, बट ये करेक्ट नहीं है कि उसका एक्टिवेशन G1 फेज में होता है। लोडिंग तो हो जाती है G1 फेज में, बट एक्टिवेशन कब होता है, S फेज में होता है। दैट इज वाई दिस ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं। द न्यू डीएनए इज सिंथेसाइज्ड सेमी कंजर्वेटिवली। आपको ये पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें से गलत कौन सा हुआ, सी, लोडिंग एंड एक्टिवेशन ऑफ हेलिकेज इन G1 फेज। ये था आपका पार्ट नंबर 2, जहां पे क्वेश्चन नंबर 11 to 20 हमने सॉल्व कराया। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के बचे हुए क्वेश्चन का सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।